Assalamu alaikum. I am Miss Sana Khan, Class 8, Chapter Shah Abdul Latif Bhitai, page number 7. Islam is the religion of peace. God sent the Prophet as a blessing to mankind. He won people's heart by his kind nature and gentle ways. His noble example was followed by many of his followers in all ages, all over the world. It was through the effort of these saintly men that Islam spread far and wide. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. इस्लाम मजहब है अमन का। अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे इंसानों की भलाई और बेहतरी के लिए, जो लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को उजागर करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि खुदा की वहदानियत को कबूल करो। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के बाद जिन लोगों को इस काम पर लगाया वो सूफिया, सेंट, औलिया, पैगंबरों की तर्ज पर चलने वाले लोग थे। In every part of our country there are shrines of such saints. In Lahore are the shrines of Data Gand Bakhsh and Mian Mir Sahib. In Pakpatan lived and died Baba Farid. In Multan is the shrine of Ghaus Bahul Haq. In Peshawar, in Quetta, and in countless other towns and cities there are the tombs of these men of God. In Sindh are the tombs of two great saints, Shah Abdul Latif Bhitai and Lal Shehbaz Qalandar. मुल्क के हर हिस्से में मुख्तलिफ किस्म के मज़ारात हैं जो इन सूफिया और औलिया पैगंबरों के हमें याद दिलाते हैं। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श का मज़ार है, पाकपतन में मियां बाबा फरीद का, मुल्तान में गौस बाहुल हक का मज़ार है। इसके अलावा पेशावर, कोयटा में मुख्तलिफ किस्म के टाउन्स में मुख्तलिफ किस्म के मज़ारात मौजूद हैं औलियाओं के। इन सिंध में जो सबसे ज़्यादा मशहूर मज़ार है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का और लाल शहबाज कलंदर है। ये सिंध के बहुत ही मायानाज़ सूफ़ी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और लाल शहबाज कलंदर हैं। The great saint Shah Abdul Latif, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was born in 1102 Hijra in a small village called Hala Haveli. सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध के एक छोटे से गांव हाला हवेली में पैदा हुए। The good Mughal Emperor Aurangzeb then ruled the country. Shah Abdul Latif ancestors migrated to Sindh during the day of Tamerlane. They had come from Hijrat. Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Abdul Latif ancestors liked it so much that they decided to make it their home, but no one would have remembered their names or learned about them. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के आबा अजदाद माइग्रेट करके हिजरत करके सिंध में आए। Later one of their descendants stated Sayyid Habib Shah had not been blessed with a son who grew up to be Saint Lal Latif. इनके आबा अजदाद में इनके डिसेंडेंट में सैयद हबीब शाह हैं जिनके बेटे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं। शाह लतीफ़ had a very sensitive mind. His heart was soon filled with the love of God. The beauty of nature aroused his feelings strongly. While he was only a boy, he started composing poetry. He was also keen on acquiring knowledge and he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बहुत ही हसास रहन के मालिक थे। वो अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना, उसके खूबसूरती, उसके आसपास जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत जो नेचर की चीज़ें बनाई हैं, जो कुदरती चीज़ें थी, उनको बेहद पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे उन चीज़ों की तरफ। और ये शुरू से ही शायरी करते थे, अल्लाह खुदा की बनाई हुई कुदरती चीज़ों को देखकर उसकी बड़ाई बयान करते थे और शुरू से ही आपको शायरी का बेहद शौक़ था। He showed great kindness to his wife and lived at home for many years. His heart, however, turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless in living a normal domestic life. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हमेशा से अपनी आम लाइफ को छोड़कर उनका दिल हमेशा खुदा की वहदानियत की तरफ मुड़ता और वो हमेशा कोशिश करते कि वो अपनी आम लाइफ को छोड़कर उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हों जो कुदरत की बनाई हुई हैं। और वो When his father died, Shah Abdul Latif left his home and went to live on a mound at some distance from his village. A mound of sand is called Bhet in Sindhi. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद
उन्होंने अपने आबाई गांव को छोड़कर उसके करीब ही एक टीला था, वहां आकर रिहाइश इख्तियार की। अ माउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड भिट, और वो टीला बाद में जाकर भिट शाह के टीले के नाम से मशहूर हुआ। ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन दिस माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, शाह लतीफ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट। टू दिस डे ही इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ भिटाई और शाह लतीफ ऑफ द मॉन। As days passed, Latif's love of God grew more and more until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion so much that people began to be attracted towards him. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways, and his follower increased day by day. शाह अब्दुल लतीफ वक्त गुजरने के साथ साथ उस टीले पर अल्लाह ताला की इबादत करते और ज़्यादातर वक्त तहारतों में गुजारते, इबादत में गुजारते, ज़हाद व तक़वा में गुजारते। यहाँ तक कि आसपास के लोग जब उनके पास आते, उनसे मिलने, उनसे बात करने, तो बहुत ज़्यादा उनकी बातों से मुतासर होते। Who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his follower increased day by day. और वक्त गुजरने के साथ साथ उनके फॉलोअर्स में, उनके मानने वाले, उनकी मोहब्बत करने वाले लोगों में इजाफा होने लगा। Close to the mount on which Lal Latif came to live, a natural lake, he poetic nature loved the calm atmosphere. He would spend much of his time sitting on the bank of his lake. As he sat there, he prayed to God and something composed verses in his praise. उस माउंट के करीब एक लेक थी, नेचुरल लेक। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई चूँकि शुरू से ही बहुत ज़्यादा पोइटिक नेचर भी रखते थे, एक कुदरती शायर भी थे और खुदा की बनाई हुई चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ मुतवज्जह होते थे। लिहाजा उन्होंने उसकी बनाई हुई चीज़ों की तारीफ में कुछ अल्फाज लिखना शुरू किए। शाह अब्दुल लतीफ वॉज नॉट ओनली अ सेंट एंड अ पोइट। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई न सिर्फ एक सूफी बुजुर्ग थे, न सिर्फ एक शायर थे, बट ऑल्सो अ म्यूजिशियन, वो एक मौसीकार भी थे। He found great comfort in music. His skill in this art enabled him to make many improvements and changes in the difficult music of his time. And in everything else, he loved simplicity in music and musical instrument. He did not agree with the idea that music could be difficult, so he made it simple. He also invented a simple musical instrument and called it tambura. शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने एक बहुत ही सिंपल सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इजाद किया जिसका नाम था तंबूरा। इट वॉज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द अरब्स बट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग वॉज डिफरेंट। टू दिस डे द तंबूरा इज पॉपुलर ऑल ओवर द सिंध। ओल्ड एंड यंग पीपल इट एंड सिंग द सॉन्ग ऑफ लतीफ टू इट्स सिंपल बट मूविंग ट्यून्स। आज भी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के जो इन्वेंटेड तंबूरा है उसे सिंध के लोग बजाते हैं और ये बहुत ही सिंपल किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। Lal Latif died in 1165 Hijra on the mount where he had lived and was buried there. शाह अब्दुल लतीफ भिटाई 1165 में उसी माउंट पर उन्हीं का इंतकाल हुआ, उसी टीले पर, और वहीं उनको दफनाया गया है। A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that he built a shrine over his grave. Latif devotees collected his poetry and his collection came to be called the Risala of Shah Abdul Latif Bhitai. सिंध के एक बादशाह, एक किंग गुलाम शाह कलहोड़ो, वो भी अब शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के डिवोटीज में शामिल थे। उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के लिए एक मज़ार तामीर किया और उनके मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वालों ने उनकी लिखी हुई शायरी को कलेक्ट कर शाहजो रिसालों के नाम से उनकी तमाम पोइट्री को यकजा करके उसे एक रिसाले की शक्ल दी। ही वॉज अ पोएट ऑफ द पीपल, सो ही रोट पोइट्री इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। चूँकि वो एक आम इंसानों के, आम लोगों के लिए लिखते थे, लिहाजा उनकी शायरी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान जुबान में होती थी जो आम लोगों को समझ में आसानी से आ जाती थी। दिस कलेक्शन ऑफ दिस पोएम इज वैल्यूड दैट इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। उनकी शायरी को मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया, तर्जुमा किया गया है। वन ग्रेट क्वालिटी ऑफ लतीफ पोएट्री बिसाइड इट्स सिंप्लिसिटी, इट इज मूविंग म्यूजिक व्हेन यू लिसन टू इट। Even if you do not understand a word of it, you will be moved by its melody. उनकी शायरी इस कदर आसान थी कि अगर आपको ना भी समझ में आए, लेकिन उसका तरन्नुम ऐसा था कि आप उसे पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे, इंजॉय करते थे। लतीफ उर्स इज हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर ऑन 14 सफ़र। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स हर साल 14 सफ़र को मनाया जाता है। द सेकेंड मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर, जो मुस्लिम कैलेंडर में सेकेंड मंथ है सफ़र का। Many thousands of people gather, listen to the sad songs sung on the tambura and after their prayers. मुख्तलिफ लोग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स पर उनकी याद में उस तंबूरे को प्ले करते हैं और सॉन्ग्स
जो मुख्तलिफ किस्म के हैं वो सुनाए जाते हैं। उसके बाद प्रेयर की जाती है, इबादत की जाती है। Tambura and offer their prayers. Many learned men read papers that tell about Latif life and his poetry. Recently, a library, a rest house, and a museum have been built. शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की कलेक्शन के तौर पर उनके लिए, उनकी याद में म्यूजियम बनाया गया है, अजायब घर बनाया गया है, जहाँ पे उनकी यादगार चीज़ें रखी गई हैं, बुक्स रखी गई हैं, लाइब्रेरी बनाई गई है, जहाँ पे आपको शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके सवानाए हयात के बारे में तमाम दर मालूमात मिलेगी। ये वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी कौम का असासा होती हैं। The shrine itself has been rebuilt and connected with the main road. Its lovely white dome representing the purity and dignity of Latif can be seen from many kilometers. उनके श्राइन्स, उनके मज़ार तक पहुंचने के लिए उस श्राइन को मेन रोड के साथ लिंक किया गया है ताकि लोग बआसानी वहां पर पहुंच सकें और वहां जाकर अपनी उसका इजहार कर सके, उनसे मोहब्बत का। उनका मज़ार इंतहाई खूबसूरत है। इट्स अ वेरी प्योर, इट्स अ वेरी, बहुत ही जिसे कहते हैं शफाफ पाकीज़ा किस्म की एक एटमॉस्फेयर होती है जब आप भिटाई साहब के मज़ार पर जाते हैं। लतीफ़ मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मैसेज है मोहब्बत, इंसानियत। ही बिलीव इन द ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी ऑफ मैन। वो यकीन करते हैं भाईचारे पर, बराबरी पर, इंसाफ पर। इन प्लेजिंग गॉड बाय गुड डीड्स। इंसान अपने अमाल से पहचाना जाता है, अल्लाह ताला इंसान को उसकी अच्छाइयों से पहचानते हैं, उसके अच्छे अमाल से पहचानते हैं। दिस अकॉर्डिंग टू हिम इज़ द गोल ऑफ लाइफ। और यही इंसान की ज़िंदगी का खासा है कि हमारे अमाल हमारी बेहतरीन अक्कासी करते हैं पर्सनैलिटी की। दिस इज़ कॉल्ड द मैसेज ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, टू लव अदर पीपल एंड टू लव। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। आई होप यू लाइक इट। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होगा आप इसे डिक्शनरी में फाइंड आउट करें, इसको बारहा रीडिंग करें। इसमें फर्दर मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब को लिंक करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।